introduce the team from SRK Diamonds. It's Mr. Govind Dholakia. He's the team members, Nirav. Nirav is the General Manager HR. And to my left is Dr. Ashwin Desai. He's an English professor, currently comparative literature, currently working associated with that. My objective is, they've created one of India most successful diamond companies in the world, and of course, the story is remarkable. We are currently doing some research and writing a case on that, and so really impressed by the way they go about handling it, and I thought it's a good opportunity for people to interact. I also would like to introduce two of our future colleagues. Professor Pramila. Professor Pramila has joined us. She's a psychologist. She joined us. She was consultant that way, and of course, she's a real doctor. Dr. Rajesh. He's a pediatrician. Now you would ask, what is he doing at IMA? Apart from, if somebody faints in the class, or the way we treat students, if somebody faints in the class, then he's there. He finished his doctorate from IIM Bangalore, and he's also expected to join IMA in April. Currently he is associated, and there are a couple of FPM fellow students and research students, or associates, academic associates also in the classroom. So let me introduce, welcome Kaka to, as he is popularly known, to start with. Or you start with the corporate video. Yeah, they'll start with the corporate video and the presentation, and then they can have. Barefoot, with nothing in hand, a boy of 13 left his small village in Saurashtra to help his family build a roof over his house. He had a gleam in his eyes as he landed in the diamond city, Surat. He took the job of an artisan and started to cut and polish diamonds. It was just the beginning of a journey larger than the dream. In the year 1970, he and two of his friends left their jobs to start a diamond cutting and polishing unit. He had nothing but the trust in his friendship, belief in God, and faith in his own abilities. Was it a destiny that was being cut and polished? Hard work and luck started to come together. It was impossible to stop this boy as he became a man. A small factory that only had 3 polishing wheels and 5 workers made way for a bigger factory in 1977. Growth was inevitable. It required a bigger organization to satisfy this man's dreams and aspirations. Year 1997, an establishment with more than 1,000 workers was started. He did not stop there. Year 2011, a state-of-the-art and one-of-its-kind facility in the world was unveiled. That has a capacity of more than 4,000 workers. Man can believe in the impossible, and he can achieve the impossible. The boy of 13 who started it all is Govind Dholakia, principal founder of Sri Ram Krishna Exports. SRK is one of India's leading diamond manufacturers with annual revenues of over $700 million. SRK, where the biggest capital is the trust that they have earned over 5 decades. An ultra-modern, technologically advanced and fully air-conditioned facility at Surat uses Italian magnetic chiller technology
for cooling the entire building. This facility is committed to green initiatives and is a member of the US Green Building Council. SRK Empire is one of the first in the world where the total workforce works in the comfort of an air-conditioned environment. SRK's motto has been simple: enhancing customer satisfaction, along with employees and their family members' welfare simultaneously. It has the most modern amenities to cater to its employees: a hygienic kitchen for nutritious food, a library for information needs, an audio-visual room for entertainment, an auditorium for training, a sports complex for fitness, and much more. Corporate social responsibility is considered a part of life. Regular health camps are arranged for the well-being of all tribal people and to create fitness awareness as well. At SRK, the day begins and ends with a prayer. At SRK, rough stones are sourced from the best suppliers in the world. And from here starts a process that involves state-of-the-art technology and craftsmanship backed by relentless human passion for excellence. Govind Dholakia started it all, and now the second generation leadership is further taking SRK to newer heights. Sri Ram Krishna Exports has always been an ambassador to the diamond business and a trendsetter in many ways. Bharat Diamond boasts a 2 million square feet facility is the biggest diamond hub of the world. SRK was one of the first to move into Bharat Diamond Bourse, where it has its headquarters. From BDB, SRK takes care of the sales and marketing of the final polished diamonds. SRK has a client base of hundreds of jewelry manufacturers, retail traders, chain stores, and small independent stores all over the globe. SRK has its presence in Hong Kong, China, Israel, Belgium, and USA. As a part of the forward integration process, SRK added one more feather in its cap by foraying into jewelry manufacturing, which creates superlative diamond jewelry. One for the expanding Indian domestic market and one for the international markets. Taking customer interaction to another level, SRK took another technological leap with srkexport.com. Here buyers can check all their diamond requirements and order accordingly. Currently, SRK has more than 1,000 active online customers doing business with utmost ease. SRK has a comprehensive online presence with iPad, iPhone, BlackBerry and Android apps, creating a paperless and convenient environment for all. અમારે જે બિઝનેસ કરીએ છીએ ડાયમંડને અમે ભગવાન સમજીએ છીએ. A boy saw a dream. He wanted to make fine diamonds. Today, a team of 5,000 hard-working men is living that dream. SRK has come a long way, but the journey still continues. I am nothing, but I can do anything. ઓમ પાર્થાય પ્રતિબોધિતાં ભગવતા નારાયણેન સ્વયં
संहितायां व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं मम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वैषिणीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज मेरा बहुत सद्भाग्य है कि मैं IIM में खड़ा हूँ। थैंक्स टू बीजू सर कि जिसने हमने आप सबको मिलने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है। आपने देखा और आप लोग कुछ समझने के जानने के लिए आए हैं। मैं मानता हूं कि मैं यहाँ कुछ सीखने के लिए आया हूं, क्योंकि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। ये हमारा सद्भाग्य है कि मेरे को ये सीखने का मौका आज मिला है। ये शास्त्र में लिखा है कि जब अपनी कोई बात करने की आती है, हमारा जो वखान करने का आता है, ये मृत्यु के बराबर है। तो आप वखान जो करने के मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये जो बात है ये मृत्यु के बराबर है। मगर आज जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा बात करने का ढंग है, इसमें मेरी बात मेरे को बोलने की जरूरत हो गई है। तो आप क्षमा याचना, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर अविवेक हो जाए तो माफ करें। तो आपको क्या जानने की तमन्ना है, क्या लेने का है, वो आपको 10-15 मिनट में जब मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा। बाद में मैं प्रवचन देने के लिए नहीं आया। मैं कोई अधिक हूँ, बहुत सक्सेस हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, इसलिए आप सब लोग को बोलने के लिए, सिखाने के लिए आया, ये बात बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो अपने बात हो सकती है, तो हम लोग टॉकिंग बातचीत करेंगे, वो प्रवचन नहीं करेंगे। तो अभी मैं मेरा जो थोड़ा पहचान देने का है, 10 मिनट में ये बात खत्म करता हूँ। मेरा नेटिव प्लेस है सौराष्ट्र, वेस्ट गुजरात, अमरेली जिला में लाठी, कलापी नगर बोलते हैं। कलापी बहुत बड़ा कवि हो गया, उस राष्ट्र कवि बोलते हैं उनको। ये गांव है मेरा। बाजू में दूधाला गांव था। 700 का ओनली पॉपुलेशन दैट टाइम, जब मेरा जन्म हुआ। ऐसे लिखा है पासपोर्ट में 47 का मेरा बर्थडे, मगर है ना 49 का, क्योंकि वो टाइम पर किसी को मालूम नहीं रहता। स्कूल में जावे तो वो टीचर को भी मालूम नहीं रहता था। तो उसने मेरे को 57 में मैं दाखिल हुआ तो उसने बर्थडे लिख दी 47, तो अभी हो गया 47। तो ऐसे मैं 2 साल छोटा रहना नहीं मांगता, मगर असल बात है। तो मेरा जो 700 का बस्ती था, बहुत छोटा गांव था, और हमारे खेत का काम था। वो जनरेशन टू जनरेशन खेत का ही काम करते थे। 5 भाई है, 2 बहनें हैं। और मैं जब भी समझने लगा तो मैं स्कूल में 7 साल पूरा उम्र हो गया, तब हुआ मेरा स्कूल में। गांव में कोई 7 साल का उम्र हुए स्कूल में नहीं जावे तब तक कोई छड्डी भी पहनता नहीं था। उसमें से मैं भी हूँ, मगर अकेला नहीं, पूरा गांव ऐसा था। तो वो नवाई की बात नहीं है। 11 साल ये पैर ने चप्पल नहीं देखा। 1 से 4 धोरण मैंने गांव में पढ़ाई की। गांव में 5वीं नहीं थी तो 5, 6 और सावत बाजू में जो लाठी था वहां में चल के 6 किलोमीटर एवरीडे में चल के जाता था। और आई एम स्टडी ओनली 7 गुजराती आफ्टर गो टू सूरत।
but I am study only 7 Gujarati, but I can speak English very well without grammar. But you see, in the world, because I have world experience last for 35 years, first time I am going to Belgium in 1977. That time I ABCD also not learn, because at that time in school not ABCD starting, English starting also from 8. So that why I ABCD also not learning. But after I see, I am going to in the world more than 150 countries. So around the world, and my last 30 years, my life gone more than 30% in overseas. That's why I can speak in English. But why not with grammar? Because grammar want only British and India. Otherwise in the world don't want grammar. Because British has mother language, India has largest language. That's why two countries want grammar. That's why my English is running in the world. जब मैं खेत में काम करता था, 6-7 साल का था, पढ़ने भी लगा, खेत में काम करने भी लगा। खेत में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे को नहीं आता है। नहीं आता है तो खाली बोने का नहीं आता है बस, बाकी पूरा। ये स्टोरी में बहुत महत्व की, आपको अच्छी लगेगी इसलिए मैं बताता हूँ कि जब मैं 7-8 साल का था, गांव में से खेत में जाने का सुबह में बैलगाड़ी में, तो बैलगाड़ी में वो गोबर जो वो रहता है वो खेत में डालने का होता है, गाय बलद का गोबर लेके एवरीडे जाते थे। मैं उसके ऊपर बैठा था, मगर टोपला रखा था क्योंकि मेरा छड्डी बिगड़ नहीं जाए, इसलिए भाई ने टोपला रख दिया था। मगर वो टोपला ऐसे ऊपर रखा था, मैं थोड़ा ऐसे नमा तो टोपला भी गिर गया, इसमें मैं था तो मैं भी गिर गया। तो ये जो 3 इंच का स्टील का पट्टी रहता है, जो बैल गाड़ी का जो व्हील होता है उसको स्टील का लोखंड का रहता है, तो उसके मेरी ये उंगली उसके नीचे आ गई। तो जैसे फुटपट्टी होती है चप्पट, ऐसे मेरी उंगली ऐसे चप्पट हो गई। सुबह 6 बजे की बात है, तो हम खेत में गए, मेरा 2 भाई था, बड़ा भाई, तो उसने बोला कि अभी आप खेत में जो वाड़ी होता है, एक पीपल का झाड़ एक गुंदी का, तो वहां उसने खटोला बांध दिया दोनों करके, मेरे को सुला दिया। मैं बोलूं मेरे को बहुत होता है दर्द, तो उसे मूंग खेत में होता है, मूंग का पान लेके वो मूंग लगावे, मूंग का पान, तो लोई तुरंत ही बंद हो जाते हैं। तो ये बंद हो गया और लगा दिया बिना वो कपड़े का पट्टा। शाम को 7 बजे तक वहां सुलाए रखे। तो शाम को घर पे आए, रात को दूसरे दिन मेरा पापा ने रात को पूछा, वो गाँव गए थे, कि तो बहुत ज्यादा लगा है, उसको लाठी ले जाना पड़ेगा। लाठी मीन्स तालुका डिस्ट्रिक्ट 6 किलोमीटर फ्रॉम अवर विलेज। मैं वहां गया तो डॉक्टर ने बोला, तो डॉक्टर ने भी क्या किया, वो खोला और दूसरा लाल दवा लेके उसने भी पाटा बांध दिया। तो आज भी ये टेढ़ी है उंगली। तो बस अच्छा हो गया। बाद में मेरा पिताजी ने मेरे को 4 पेंडा, मिस उसको बोलते हैं पाशेर पेंडा, पहले पाशेर ऐसा आता, किलोग्राम नहीं आते थे, तो पाशेर पेंडा में 4 पेंडा आते, उसने ले दिया। और पहली बार जिंदगी में मैं बस में बैठा, मेरा थिंक तभी क्या था, मेरे को इतना अच्छा हुआ, मेरी ये आंगली चूंदी हो गई, मेरे को बस में बैठने को मिला और पेंडा मिला। ये एक आपके सामने जो खड़ा है, एक गोविंद असलियत यही है। जब भी मैं सूरत आया तो 6 साल आई एम वर्किंग इन डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग एंड फैक्ट्री। When I come to Surat, that time only 200 diamond cutting polishers in the Surat. Today, more than near to 6 lakh. That time only 200. That time I come to Surat. And जब भी मैं सूरत आया और एक सब काम 6 साल, पहला पगार मेरा 103 रुपया का आया था। 6 मंथ ट्रेनिंग का था। वो ऐसा था, क्यों लगाता था मालूम, आज हम 1 महीने में ट्रेनिंग दे देते हैं टुडे, वो उसको 6 महीना लगता था वो टाइम पर। वो ट्रेनिंग लिया, काम शुरू किया, और हम 3 फ्रेंड साथ में काम कर रहे थे। तो हम तीनों मिलके, वो मैंने भाई साहब ने बोला ऐसा, वो दोनों ने 2-2 हज़ार रुपया निकाला। मेरे पास तो पैसा नहीं था, मगर मेरा बड़ा भाई के पास 2 मशीन थे, वो व्हील, तो उसने व्हील का 1050 रुपया कीमत रखा। ये मेरी मुड़ी थी। ये काम शुरू किया, मगर ये जब काम शुरू किया, महत्व की बात अभी होती है कि प्रगति कैसे होती है। तो उसमें कुदरत की कोई योजना होती है। मनुष्य कहे मैं करूँ करतल दूजा कोई,
आदरा अधवच्चे रहे, हरि करे सो होय, ऐसे सब योजनाएं बनती रहती है। ये योजना बनने में पूज्य डोंगरे जी महाराज जो भागवत कथाकार है, आप लोग ने नाम सुना नहीं सुना मेरे को मालूम नहीं, वो तो धाम में गए, उसको भी 20 साल हो गए। उनका भागवत कथा सूरत में चल रहा था। मेरा प्रगति कहाँ से शुरू हुआ मैं आपको वही बताता हूँ। तो जब भी मैंने जब कारखाना शुरू किया 12 मार्च 1970 में, तभी 3 हम पार्टनर थे और 2 वर्कर थे, टोटल 5 आदमी हम काम करते थे फैक्ट्री में। वो टाइम पर ये डोंगरे, उसके पहले 2 साल पहले डोंगरे जी महाराज का कथा वहां सूरत में लगा था। मैं वह काम कर रहा था, तो मैं रविवार को सुनने को गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने मेरा शेठ को बोला कि शेठ भी मेरा जितना छोटा है, उसका भी मैरिज नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ था। वो भी कारखाने में सो जाते थे, हम भी सो जाते थे, हम सब साथ में सो जाते थे। तो मेरे शेठ ने बोला कि मेरे को एक कथा सुनने का 7 दिवस का, तो बोला तेरा ये डायमंड अगर काम नहीं चले तो पूरा सिस्टम रुक जाए। मैंने बोला मैं शाम को 6 बजे से रात को 11 बजे तक काम करूंगा। मैं अकेला बैठता था और शाम को 7 दिन तक काम किया, दिन को कथा सुना, और क्या कथा में फल मिला। तो डोंगरे जी महाराज ऐसे बोलता था कि अगर आपको मान चाहिए, सब लोग आप अपने आप को पूछ लो। तो मैंने पूछ लिया मेरे आत्मा से, मैंने बोला मेरे को तो बहुत मान चाहिए, क्योंकि छोटी उम्र में कोई मान देते नहीं है। तो हम जब काम सब लोग साथ में करते हैं, मेरा नाम गोविंद है तो कोई गोविंद करके नहीं बुलाते, गोविंदा ऐसे बुलाते। भगवान होते तो भगवान भगो ऐसे बुलाते, कांजी है तो कानियो ऐसे हम लोग बुलाते थे सब अकेला आपस में। तो डोंगरे जी महाराज ने बोला अगर आपको मान चाहिए बहुत इजी है, कैसे करने का। तो आप वो बोले कि आप अगर किसी को मान देने को सीख जाओ तो आपको मान मिल जाएगा, दूसरा कुछ नहीं करने का। और एग्जाम्पल दिया कि हिमालय में बहुत पहाड़ियां होती है, लाखों पहाड़ियां होती है, वहां जाके आप बोलो भगवान तेरा भला करेगा, तो 10 बार 20 बार आवाज आएगा वापिस, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला। वहां जाके अगर कोई बोले कि तेरा सत्यानाश होगा, तो 10 बार 20 बार आवाज आएगा तेरा सत्यानाश होगा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा। ये एग्जाम्पल के साथ समझाया। मैंने बोला ये मुफ्त में है और आइडिया अच्छा है तो उसका अमल करना चाहिए। तो दूसरे दिन मैंने अमल शुरू किया। तो जिसको मैं भगो बोलता उसको भगवान भाई बोलने को शुरू किया, कान्यो बोलता था कांजी भाई बोलने को शुरू किया। तो सब लोग मेरे को पागल मानने लगे। आज 1-2 वीक तो ऐसा गया कि गोविंद का कुछ एकादा वो खच गया है, तो वो बोला कि एक गोविंदा का क्या। बाद में 15 दिन होके सब लोग थोड़ा सीरियस होने लगा। मैं कुछ नहीं करता था, कुछ भी बोले खाली हंसने का, कुछ नहीं बोलने का, नो एनी। बाद में 2-3-4 महीने में तो इतना चमत्कार हुआ कि फैक्ट्री में 40 आदमी थे। 40 आदमी मेरे को पूरा रिस्पेक्ट देने लगा। अगर मेरा कोई मश्करी करे तो दूसरा 3 आ जाए, गोविंद भाई का नाम मत लेने का। और इतना सस्ता और इतना सरल, इतना मान मिल गया। हमारा बॉस था, वो चाय पीवे मेरे को पिला, उसके साथ वो काम, बॉस के साथ मेरा सीट हो गया। तो इतना अच्छा लगा। बस उनके हिसाब से मेरे को एक मिल गया। उसको बोले क्या अक्षय पत्र नहीं हो, तो ये हिंदी में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई तो आपने माना। वर्धा का एक अच्छा हुआ कि 2 वर्धा हिंदी का, एक और दूसरी हिंदी का एग्जाम दिया, उसमें तो मैं फेल हो गया था, मगर इसलिए इतना हिंदी आ गया तो अच्छा हुआ, थैंक्स टू वर्धा कि हमने ये लाइन पर। तो इसलिए थोड़ा जो गुजराती में जो जोम्स और जुस्सा होता है वो हिंदी में कम हो जाता है, क्योंकि एवरीडे बोलने का वो नहीं है ना एक्सपीरियंस, इसलिए। तो एक कल्प वृक्ष में बोलता था कि कल्प वृक्ष जो है तो मेरे को मिल गया। फिर मेरे को किसी को मैंने आज तक तू नहीं किया। तो उसका क्या सिस्टम में फायदा मिला, पूरा सिस्टम में, कि सब मेरे को चाहने लगे। अगर मेरा छोटा भाई है तो मैंने उनका नाम से नहीं बुलाया, भाई से ही बुलाया। मेरा भतीजा है तो भाई से ही बुलाया। मेरा भतीजा का लड़का है 3rd जनरेशन, तो मैं भाई ही बुलाता हूँ। और यहाँ उसका DVD खड़ा हो जाए, ये मेरा भतीजा का लड़का है, मैंने कभी तू नहीं किया उसको, और आप करके मैं बुलाता हूँ। क्यों कि मेरे को वो मेरा इंसल्ट कैसे करेगा, मैंने अभी उनका किया ही नहीं है, मैंने उसको तुकारा नहीं है, मेरा इंसल्ट कैसे करेगा। तो ये सब लोग मेरे को इतना मान सम्मान देते हैं
फिर तो मेरे को वजन बढ़ गया। 10 साल पहले क्या हुआ, पूरा समाज में इतना मान सम्मान मिले, पूरा फैमिली में इतना मान सम्मान मिले, पूरा सिटी में इतना मिले, तो ये मान सम्मान इतना बढ़ गया कि वजन में तो सही नहीं जाता था। मैंने बोला ये कैसे हो, कैसे गया? क्योंकि मेरी 5 नहीं है बुद्धि, तो मेरे को मालूम है ना, मेरी 5 बुद्धि नहीं है, वो मेरे को मालूम है। मेरी 5 मेमोरी नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। तो मेरी 5 बाप दादा का जो गुडविल होता है वो नहीं, वो तो लोग जनरेशन टू जनरेशन 500 साल से जो मालूम है, वो लोग तो खेत में ही काम करते थे, तो उनकी तो ऐसी कोई गुडविल नहीं थी कि उसको व्यापार करते हैं, ये राजा महाराजे को पहचानते हैं, व्यापारी को पहचानते हैं, ये कोई गुडविल नहीं मिला है। गांव में रहता था तो वहां कुछ देखा भी नहीं था, जन्म से लेके 13 साल तक। तो मेरे को कैसे मिले? मगर आप सबके लिए मैं बोलता हूं कि आप लोग में से कितने पढ़ाई किया है $1 बिलियन बुक? $1 बिलियन बुक का नाम है $1 बिलियन बुक। इसमें से किस किसने पढ़ाई किया है? देखो, बहुत अच्छा होगा। तो मेरी प्रार्थना है कि आप सब पढ़ लेने का। किसी कोई अच्छा आदमी होगा, उसने गुजराती में ट्रांसलेशन किया था, तो मेरा हाथ में वो 7-8 साल पहले आ गई। मेरा जितना भी कंफ्यूजन था सब उसमें से रास्ता मिल गया, क्योंकि उसमें वर्ल्ड का 300 बिलियनर का खाली सेंटेंस है कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग को मैसेज क्या देते हैं। तो ये जो 300 बिलियनर ने जो मैसेज दिया, इसमें से 90% मेरा स्वभाव में था ऑटोमेटिकली। फिर मेरे को आंसर मिल गया कि मेरे को जो ये पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, मान सम्मान मिलता है, ये सब मेरा स्वभाव के कारण मिलता है। ये भगवान ने मेरे को नेचुरली दी है, उनके लिए मैंने कोई कठिन क्रिया नहीं किया है, नेचुरली ऑटोमेटिकली हो गया है। तो $1 बिलियन बुक मैं उसके बाद में मैं समझ गया, मेरा टेंशन दूर हो गया कि भाई भगवान ने मेरा स्वभाव में दिया है। फिर मैं जब जाहिर प्रवचन पब्लिक में करता हूं तो उसके ऊपर भार देता हूं कि कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। सुख दुख अपना स्वभाव से ही मिलते हैं। तो अपना स्वभाव अगर अच्छा है तो हमको सुख मिलता है, अगर अपना स्वभाव अच्छा नहीं है तो दुख मिलता है। सुख दुख की व्याख्या ज्यादा करते लोग पैसा के साथ जुड़ते हैं। पैसा सुख दुख नहीं दे सकते, वो तो खाली सगवड़ता दे सकते हैं। पैसा ये अपने को एक सगवड़ता देता है। मैं सबको जाहिर प्रवचन में भी बोलता हूं कि मेरी 5 मर्सिडीज है, ओडी है, सब कार है, जो BMW, आप जो नाम बोले वो सब है भगवान की दया से। मोर देन 100 कार इन अवर पार्टनर, ऑल पार्टनर्स। तो आप कोई भी नाम बोले तो है, मगर ये सब ऑफिस से घर आने के लिए, घर से अहमदाबाद आने के लिए, अहमदाबाद आने के बाद यहाँ IIM में आने के लिए काम आती है, मगर वो रूम में नहीं आती। यहाँ आई नहीं आई, यहाँ दिल आता है, यहाँ दिल आता है। मैं जाहिर प्रवचन में बोलता हूँ कि अपने पास कितना भी अच्छा साधन सामग्री हो, गाड़ी तो हमको गैरेज में छोड़ने जाना पड़ता है, वो हॉल में भी नहीं आती, बेडरूम में भी नहीं आती। तो सुख कहाँ मिलता है? हृदय में। तो सुख वहाँ ढूंढना, हम सुख गाड़ी में ढूंढते हैं, सुख हम कोई खाने में ढूंढते हैं, पीने में, प्रतिष्ठा मिल गई तो सुख समझते हैं। ये सब बात गलत है। सुख अपना हृदय में, अपना माइंड में, अपना स्वभाव ने सुख अपनी पास खड़ा है। ये सफलता का हमारा जो राज है वो यहां से तो शुरू हुआ है कि कभी किसी का अपमान नहीं किया, तो हमारा जो पूरा स्टाफ हमको मिला वो हमारी जैसा मिला, क्योंकि हमारे नीचे काम करने वाला 18 साल से कम उम्र काम रखते थे। मगर आज भी 18 साल का कोई आ गया नया आदमी, उनको हमारी फैक्ट्री में कोई तू नहीं बोलेगा, आप बोलेगा। क्यों? कि मैं हमारा मैनेजर को, जो नीचे की पर्सन को आप बोल के बात करता हूं, ये लोग उनके नीचे आप बोल के रिस्पेक्ट देते बात करते हैं, उनके नीचे रिस्पेक्ट देते काम करते हैं। तो एक सात्विक मानसों का जो मजबूड़ा, जो मिलावट ऐसा हो गया।
5,000 से ज्यादा आदमी है। देखो, एक 50 इयर्स में से 6 साल काम मैंने किया वो निकाल दो, 44 इयर्स से हमारा फैक्ट्री चल रहा है। आज तक कभी हड़ताल पड़ा नहीं, हड़ताल की बात ही नहीं आई है कि कोई कारीगर कंपनी से नाराज हुआ 44 साल में और वो जाके कंपनी का बाहर जाके कोई बात किया, ऐसा एक आदमी आपको पूरा इंडिया में, पूरा विश्व में नहीं मिलेगा कि बाहर जाके, क्योंकि 5-6 हजार है तो 10,000 छोड़ के भी गए होते, उनका भी काम होगा, खुद का किया होगा, आगे बढ़ा होगा, कुछ मुश्किल होगा, वातावरण अच्छा नहीं लगा होगा। एक आदमी तो क्या हुआ उसमें, ये काम किसका है? स्वभाव का। तो ये जो अपना स्टोरी बाद में बहुत बड़ी स्टोरी है, क्योंकि हमको अपनी जो 1 घंटे 1.25 घंटे मिले हैं, मैं बात हमारी करने को जाऊँ तो वो तो 12 घंटे में भी पूरी होने वाली नहीं है, मगर हम मेन बात जो करेंगे, अभी मेरा खाली एक बात हो गया कि भाई ये कैसे है गामड़िया गोविंद, यहाँ कैसे आए और कैसे सफल हुए, इसका जो खाली ऊपर का दे दिया। मेरे को यहाँ आके अच्छा यही लगा, मेरे को बहुत टेंशन था जब मैं यहाँ तक आया थी कि यहाँ तो सब 20-22 साल का सब लड़के लोग हो गए और सबको मैंने कैसे, वो लोग यंगस्टर को मेरी बात ये उम्र के हिसाब के उसके मन में आएगी नहीं आएगी, तो उनके लिए मैं उनको साथ में लाया कि तेरी उम्र का हुए तो मेरा काम हो जाए। मगर यहाँ आके आप लोग भी पढ़ाई करते हैं और समझते हैं, सुनने को आते हैं, मेरे को इतना ताजुब हुआ और आपको नमस्कार करने का इच्छा होता है कि ये भी आप ये पढ़ने की आपकी लालसा कितनी है। और जो लोग पढ़ते नहीं वो कभी आगे आते ही नहीं है, और पढ़ने का कोई लास्ट उम्र है ही नहीं, 100 साल में भी लास्ट उम्र नहीं है। तो आप लोग को मिलके, आपको देख के मेरा हृदय में जो आनंद आ रहा है। सो नाउ यू स्टार्ट एनी क्वेश्चन। पूज्य मोरारी बापू कैसे कि एक आदमी ने, एक गुरुजी ने रामायण पढ़ाया, तो उसका चेला ने बोला कि भाई अभी पूरा रामायण पढ़ लिया, अभी तेरे को कोई क्वेश्चन है? तो क्या नहीं है। तो गुरुजी बहुत घबरा गए कि तेरा कोई, चेला को बोला कि तेरा इसमें कोई वो नहीं है, दोष नहीं है, दोष मेरे में है कि मैं तेरे को समझा नहीं पाया। फिर पढ़ाया 5 बार पढ़ाया, फिर तो चेला बोला अभी तो एक शब्द पर मेरे को क्वेश्चन होता है। तो आप लोग प्रश्न अगर नहीं है तो इसका आपका कोई दोष नहीं है, मैं आपको जो हृदय से पहुंचना चाहता हूँ वो पहुंच नहीं पाया। ये लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपका मतलब जिस तरह से राइज हुआ है बहुत ही अमेजिंग है, बट एनीवे दैट एनीबॉडी कैन डू मोर देन दैट। जो हमें बताएंगे कि आपने एनीबॉडी कैन डू, आप हमें जो बताएंगे कि आपने बहुत बड़ी फैमिली को एक साथ इंटीग्रेटेड या अच्छी तरह से रखा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? एक पूज्य डोंगरे जी महाराज जो बोलते हैं कि जिसको भाई में भगवान नहीं दिखते वो देव सेवा और देश सेवा नहीं कर सकते। अगर वो मानते हैं भाई को छोड़ के कि मैं देश सेवा कर रहा हूं, देव सेवा कर रहा हूं, तो उनकी भक्ति नहीं है, ब्राह्मणा है। तो उनका सेंटेंस मेरा जीवन में उतर गया। मेरा फादर, ये 4 भाई हो, तो 4 भाई में से जब भी मैं 77 में पहली बार बेल्जियम गया, मैंने सोचा ये भी एक दुनिया है। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला बड़ा हो जाऊं और सब लोग के मेरा भाई के वहाँ कोई मैरिज आवे और मेरे को बोले कि चलो 2 लाख रुपया मेरे को दे, लोन दे, और नहीं तो ऐसे दे, तू तेरा गए तो खर्च कर, और ऐसे वो बेचारा होके करे, वो बराबर नहीं है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया कि मैं, हम 2 भाई, मेरा छोटा भाई मेरे साथ पढ़ता था, हम 5 भाई हैं, और एक सबसे बड़ा तो मेरे को सूरत लाया था, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हम 3 भाई सूरत हो गए, 2 सूरत थे, मेरा चौथा नंबर है भाइयों में। तो दूसरा और तीसरा नंबर को हमने सौराष्ट्र में से, गांव में से पहले सूरत लाया। वो नहीं आता था, वो बोला हमारा पूरा राज्य है, गांव में राज है, किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं, हमारे पास मोटरसाइकिल है, गांव में किसी को जरूरत पड़े तो हम राजा है गांव का, हम वहाँ प्रजा बनने को सूरत क्यों आए। फिर उसको समझाया बहुत, कोई अभी टाइम नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आया 2-3 साल में वो लोग सूरत आए, तो वो उसका पैर पर खड़ा हो गया। तो हम 5 भाई जब खड़ा हो गया तो हमारा कजिन को एक लेके उसको खड़ा किया, फिर 4 भाई लेके एक को खड़ा करे 1 साल में, 3 मिलके एक को करे, 8 मिलके एक को करे, ऐसा सब प्लान बनाया। और आपको जान के आनंद होगा
कि मेरा फादर और 4 भाई, हम कजिन ब्रदर 17 है और 13 सिस्टर है, तो जो 30 फैमिली है, तो 2000 में 30 फैमिली खुद का काम, खुद का बिजनेस, खुद का बंगला, खुद की मोटर का, यहां तक उसको सबको पहुंचा दिया, क्योंकि एक अगर वीक है तो 3 आदमी एक प्लान बना के उसको सपोर्ट देके खड़ा करते हैं। तो आज पूरा गुजरात में ऐसा कोई फैमिली है कि किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़े। 30 फैमिली में किसी को किसी की 5 पैसा, भाई हमारे को ये फंक्शन आया, एक मैरिज फंक्शन, तो थोड़ा पैसा दे, इसी को किसी को जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि सब SR के जैसा है, मगर 3 कंपनी हमारा फैमिली में बड़ी है। ये मैं आपको बोलता हूं कि हमारा श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, उनका काम ये साल 1 बिलियन से आगे जाने वाला है, तो 6000 करोड़ से ज्यादा है, वो डायमंड और डायमंड ज्वेलरी दोनों मिलके। और दूसरा हरि कृष्ण एक्सपोर्ट, जो मेरा फादर 4th नंबर, सबसे बड़ा जो मेरा फादर था उनका लड़का का लड़का, हरि कृष्ण एक्सपोर्ट उनका कंपनी है, उनका भी एक साल में 800 मिलियन तक जाएगा यही साल में, तो वो भी बिलियन के 5 नजदीक आ गया है। तीसरा कंपनी है भवानी जेम्स, तो उनका काम थोड़ा अभी छोटा, पहला हमारे से भी बड़ा था, अभी थोड़ा छोटा रह गया है, मगर उनका करीब 200 मिलियन का है। और चौथा जो भाई है उनका काम एकदम छोटा है, छोटा मीन्स खाली 10 मिलियन का। मगर ये लोग जो है तो किसी को जरूरत नहीं है, सब छोटा या बड़ा, मगर वो उनके। और ये हम 17 भाई, और मेरा फादर ये 4 भाई 2 बहनें, 6 फैमिली, 6 जनरेशन। हम लोग साल में एक बार सब साथ में मिलते हैं, क्योंकि हमारा फॉरेन में कारोबार मोर देन 12 कंट्री में पूरा फैमिली का है, तो ये सब लोग आते हैं। और जब भी अपना बोलते हैं नवरात्र में, तो ये साल 19 अक्टूबर का हमारा फंक्शन था, शाम को 6 बजे शुरू होता, रात को 2 बजे खत्म हो जाता है। सब साथ में मिलके बातचीत करते, 825 पीपल आए थे। तो एक फैमिली का, एक खाली कांची दादा, मेरा दादा का नाम कांची दादा है, उनको बोलते हैं कांची दादा फैमिली। बाहर का कोई नहीं, वेवाई नहीं, फ्रेंड नहीं, एनी कोई अंदर नहीं, खाली ओनली फैमिली, ऑल पॉजिटिव। 800 पीपल को आप किसी को भी पूछो कि कैसा है गोविंद काका, तो एक आदमी ऐसे नहीं बोलेगा भाई देखा वो पैसा वाला हो गया, मगर हमारे क्या ऐसा एक भी नहीं बोले, नो नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एंट्री नहीं हुई है फैमिली में, ये उसको शुरुआत नहीं हुआ अभी तक। कल क्या हो जाए, समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटिया यही धनुष यही बाण। कल क्या होगा मेरे को मालूम नहीं, मगर आज तक भगवान की दया से ये चल रहा है। सर, ये जो डायमंड हम इंडिया में पॉलिश करते हैं, क्या आप बताएंगे उसमें ऐसी क्या बात है कि मतलब और जगह में जो डायमंड पॉलिश होता है उससे हटके है, ऐसी कोई बात है कि जो डायमंड हम यहाँ पॉलिश करते हैं, हमारे देश में जो पॉलिश करते हैं, उसमें कुछ अलग सी बात है? डायमंड क्या होता है नेचुरल, मैं इसलिए इसमें क्लिप में आया कि हम डायमंड को भगवान समझते हैं। अगर डायमंड नहीं होता और डायमंड का इतना काम बढ़ा नहीं होता, तो मैं तो खेत में ही होता, तो मैं खेत में होता, मेरे को तो आप कोई मिलते नहीं, और ये यहाँ भी आना नहीं। ये डायमंड के हिसाब में हुआ, तो ये डायमंड गॉड है, हमारे लिए भगवान है। तो ये डायमंड जो है पूरा वर्ल्ड में मोर देन 30 कंट्री में निकलता है, इसमें इंडिया भी है, मगर निकालने में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इंडिया की जो माइंस है वो अभी लाइव नहीं है, क्यों कि 1 टन माटी निकाले तभी 1 कैरेट डायमंड निकलता है। तो 1 कैरेट में 5 कैरेट का 1 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम डायमंड निकालने के लिए 5 टन माटी निकालना पड़ता है, तो वो महंगा पड़ता है। तो ये अफ्रीका में ज्यादा करके माइन से 20 कंट्री ओनली इन अफ्रीका, रशिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, दक्षिण अमेरिका में भी है, साउथ अमेरिका में, तो ये मिलके सब है। मगर ज्यादा से ज्यादा
50% only from in Africa, 30% from Russia, 10% from Canada and 10% other all the world. तो ये जो रॉ मटेरियल निकलता है वहाँ से, उसका मेन मार्केट रॉ मटेरियल का है बेल्जियम में, एंटवर्प में। वहाँ से हम लोग यहाँ लाते हैं। पहले जब अपना बिजनेस, मैं 50 साल पहले की बात करता हूँ क्योंकि 1964 में मैं सूरत आया, तभी सूरत में खाली 10% ही डायमंड आते थे, बाकी तो एंटवर्प और तेल अवीव में उसका पॉलिशिंग होते थे। इजराइल वाला जो है वो क्यों होते थे, तो इजराइल में जो पूरा वर्ल्ड में जो जूइश पीपल है, व्यापारी वर्ल्ड का, अपने जो यहाँ बनिया बोलते हैं ना कि भाई व्यापार बनिया करते हैं इंडिया, ऐसा पूरा वर्ल्ड में व्यापार ज्यादा करके करते हैं यहूदी। तो यहूदी के हाथ में ही बिजनेस था, तो उसका इंडिपेंडेंट वो लोग 48 में हुआ, तो वो लोग ने पूरा बिजनेस तेल अवीव में केंद्रित किया। तो वो लोग वहाँ दो जगह, मैं जब गया 1980 में इजराइल पहली बार, तब वहाँ 15,000 वर्कर थे। आज नॉट 1,000 ऑल्सो नॉट, ओनली 700। एंटवर्प में 13,000 थे, आज 700, 500 ओनली इन एंटवर्प। तो वहाँ कम हो गया, तो उनका बिजनेस हमने यहाँ ले लिया। कैसे लिया कि एक कारीगरी, जैसे वो पांडुरंग दादा ने नाम पाड़ा था, पहला हीरा घसू बोलते थे, हम लोग को नाम था हीरा घसू, हीरा घसने वाला, तो उसका नाम था हीरा घसू। पांडुरंग दादा ने 40 साल पहले आया और उसने नाम पड़ा कि नहीं, उसको तो कला का काम है और रत्न की कला करते, उसका नाम हो गया रत्न कला का। तो अभी बाद में हमारा जो वर्कर लोग काम, उतना नाम हो गया रत्न कला का। तो ये जो है यहाँ, ये उंगलियों में होती है, कोई भी कलाकारी उंगलियों में होती है। जैसे गोल्ड का हम कुछ भी कैसा भी काम करें, कुछ पूरा इंडिया में अच्छा करता है, वर्ल्ड में अच्छा करता है, फिर भी जो बंगाली लोग कर सकते हैं गोल्ड का काम, ये दूसरा कारीगर नहीं कर सकते, क्योंकि ये उंगलियों की काम। ऐसे जो डायमंड पॉलिशिंग है, ये जो हमारे यहाँ आया, और हमारे यहाँ पहले सब मोर देन 90% गुजराती, तो उनकी उंगलियों में जो कारीगरी थी, कलाकारी थी, उनके हिसाब से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो पेश नहीं कर सका, और यहाँ काम इससे अच्छा होने लगा। तो ये पानी का नियम है, जहाँ ढाल होगा पानी चला जाएगा, ऐसे काम यहाँ अच्छा होने लगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों होने लगी, तो पूरा डायमंड कटिंग का काम सूरत में आ गया। आपको जान के आनंद होगा, 100 pieces making in the world now, pieces, not value, only pieces. Rest of the 85 only making in Surat, in the world. And diamond making, पूरा वर्ल्ड में जो 100 डायमंड का बनता है, इसमें 93 ओनली मेकिंग इन इंडिया। तो इंडिया में से 93 में से 8 अलग अलग जगह पे बनते हैं। कोई जयपुर में भी बनते हैं, बॉम्बे में भी बनते हैं, अहमदाबाद में बनते हैं, सौराष्ट्र में भी बनते हैं, मगर 85 मेकिंग ओनली इन सूरत। तो ये इसलिए ये डायमंड बिजनेस पूरा केंद्रित सूरत में हुआ। डायमंड बिजनेस की बहुत विशेषता जो आम जनता को मालूम नहीं है, उसकी विशेषता बहुत है। एक तो डायमंड बिजनेस जो लोग ट्रस्टेबल है वो ही कर सकते हैं, अगर ट्रस्टेबल नहीं है वो मार्केट में से 2, 3, 4, 5 साल में निकल जाएंगे, नंबर 1। दूसरा यही है कि ये बिजनेस में पहला संबंध बनाओ, संबंध बढ़ाओ, बाद में बिजनेस शुरू होता है। अलग अदर कोई भी बिजनेस में पहला बिजनेस करो, बाद में संबंध बनता है, तो ये उनकी विशेषता है। दूसरा यही है डायमंड में कि कोई भी कंपनी है, ये खुद करे, उनका ही कंपनी चले। अगर रिलायंस चाहे कि मैं 10-20 हजार करोड़ डाल दूं और डायमंड का बिजनेस करने लगूं पॉलिशिंग का, वो नहीं कर पाएगा। टाटा सोचे कि मैं 10-20 हजार करोड़ लगा दूं, वो नहीं कर पाएगा। तो कौन करेगा? तो ये जो डायमंड को जो जानते हैं, डायमंड को जो, इसलिए मैं सब डायमंड वाले को समझाता हूँ कि भगवान है, भगवान को हम जैसे श्रृंगार करते हैं, भक्तजन ऐसा है, ऐसे मेरा ठाकुर जी का श्रृंगार होना ऐसा है, ऐसे डायमंड भगवान है। उसका जितना ज्यादा श्रृंगार किया, अपने को बेनिफिट ज्यादा मिला। यही सोच के जो डायमंड के साथ काम करेगा, उनको बरकत मिलती है। इसलिए पूरा बिजनेस इंडिया में आ गया।
गोविंद भाई, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपने गीता प्रार्थना से शुरू किया और जो बताया बहुत अच्छा लगा। मेरा ये प्रश्न है कि आपका जितना भी मैंने सुना है, भगवान के ऊपर श्रद्धा और दूसरों का हर्ट नहीं करने का मनोभाव, ये दोनों चीज़ आपका सीक्रेट के पीछे है। ये हम जैसे लोग हैं जो बिजनेस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर यहाँ इनको ये सिखाना चाहें तो कैसा सिखाएं, क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि आप लोग क्या, एक तो भूख है सीखने की इसलिए सीख सकते हैं, मगर कैसे सीखा? तो हमारे काठियावाड़ में कहेवत છે આપ્યું ને તાપ્યું કાંઈ કામ આવતું નથી। तो उसका हिंदी में यही मीनिंग होता है कि किसी को कुछ दे दो या कुछ ले लो, कुछ काम का नहीं है। जो अपने हृदय में से निकलता है यही अपने को काम आता है। क्योंकि तापू में ठंडी होती है और अपने ताप कर लिया तो कितनी देर रहेगा? वो तो ताप बंद हो जाएगा, फिर ठंडी शुरू हो जाएगी, तो वो ज्यादा नहीं टिकेंगे। तो टिकेगा क्या? अंदर से जो आएगा ये ज्यादा टिकेगा। अगर एक्सरसाइज कर ली तो ठंडी चली गई, ये ज्यादा टिकेगा। ऐसे हमारे हृदय में से क्या निकलता है, तो इसमें से क्या है कि स्वभाव अपना बनना चाहिए। स्वभाव कैसे बने? क्योंकि स्वभाव हमने बनाया, स्वभाव तो भगवान ने बनाया। स्वभाव हमारा माँ बाप, जनरेशन, उसका जो आता है वो आप लोग तो साइंटिस्ट है, सब समझते हैं, मैं तो नहीं समझ पाता। उसमें सेल आता है, 2 करोड़ आता है, ये किसने ये रखा, किसका सेल कैसा रखा, किसी का ग्रीन रखा, रेड रखा, क्या मालूम अपने को। ये चाहे टेढ़ा रखा तो टेढ़ी बात करेगा, तो वो भगवान ने रखा है ना, आपने तो नहीं रखा। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने तो बना दिया हमारा, तो उसमें हम कर सकते हैं। उसमें चेंज हम खाली 50% तो नहीं हो सकता जन्म से मरण तक। 50% हमारे हाथ में क्या है? देश, काल एंड क्रिया। देश मीन स्थल, कौन सा स्थल में है? देखो हम यहाँ हैं तो हमारा विचार अलग है, हम घर में हैं विचार अलग है। आप अमेरिका चले जाओ विचार अलग, क्योंकि स्थल का फर्क है। आप गांव में चले जाओ अपना विचार अलग हो जाएगा। तो ये होता है स्थल का, उसमें चेंजेस हो सकता है स्वभाव। दूसरा होता है काल, समय कैसा चल रहा है। जब समय अच्छा है तो एकदम वातावरण भाई फील गुड फैक्टर नाउ चल रहा है, બધા अच्छा है। अभी कोई शहर में ऐसा कोई वातावरण आ गया गंदा, हमारा कुछ लेन देन नहीं, फिर भी हम वो वातावरण में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं काल, समय। और तीसरा है हम क्या क्रिया करते हैं। जैसा हम क्रिया करते हैं, मैं डायमंड का काम कर, मेरा विचार ऐसा होगा, टेक्सटाइल का विचार ऐसा होगा, खेत अगर मैं खेत करने को जाऊं, खेत में होता तो मेरा विचार अलग होता। तो ये जो देश, काल और क्रिया से फर्क पड़ता है। तो आप जिसको अगर स्वभाव मालूम हो जाए कि मैं कौन हूं, मेरे को क्या करने का है, बस इतना क्वेश्चन अगर हो जाए तो हम देश, काल और क्रिया हमारे लायक क्या है वो ढूंढ लेने की, सोच लेने की। ये सच्चिदानंद महाराज बोलते हैं कि ये जो माइग्रेशन इज प्रोग्रेस, माइग्रेशन इज प्रोग्रेस। तो जो स्थलांतर नहीं करता उसका 2-3 अगर जनरेशन वहां ही वहां रहा, वो प्रोग्रेस ज्यादा नहीं कर पाएगा। क्यों? वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। अगर यू वांट प्रोग्रेस, आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कभी भी आदमी कंफर्ट जोन में आगे नहीं बढ़ सकता। और ये तो अभी हमने सुना, इसलिए मैं कंफर्ट जोन की बात की। मेरा फ्रेंड ने एक प्रोग्राम दिया था हमारे डायमंड वाले को कि अगर आपको डायमंड में बचने का है, आगे निकलना का है, तो आउट ऑफ कंफर्ट जोन, इसलिए मैंने याद किया। मगर मेरा 30 साल से हमारी कंपनी में एक सेंटेंस चलता है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। तो मेरे पास हमारा की पर्सन आवे कोई प्रॉब्लम लेके, मैं उसको बोलता हूँ ये बहुत आनंद की बात है, अपने को ये प्रॉब्लम आया। क्यों? अगर प्रॉब्लम नहीं आता तो हम साथ में बैठ के बात ही नहीं करते, तो कुछ निकलता ही नहीं है, वहां बैठे। तो ये प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। तो अगर अपने को जो प्रॉब्लम खड़ा करने का है, तो ऐसा नहीं कि गलत कोई गलत काम करके प्रॉब्लम खड़ा कर ले, विकास की बात है। तो ये प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। तो ऐसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तो स्थलांतर जो है देश, काल, क्रिया में, तो ऐसी क्रिया ढूंढ लेने की कि जैसे हम सेटिस्फेक्शन मिले। हजारों बिजनेस बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। हम क्या कर सकते हैं हमारे लिए, हमारा स्वभाव के अनुकूल क्या है, बस इसमें चले जाए तो अपने को बहुत फायदा मिलता है।
डायमंड के व्यापार में मैंने ऐसा सुना है कि जो ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपस में जो ट्रस्ट होता है, लेन देन जो भी होता है, एक दूसरे को देना, डायमंड पहुंचाना, सब ट्रस्ट पे होता है। आप बंदों को कैसे परखते हैं कि ये आपका ट्रस्टवर्दी है, कैसे रिक्रूट करते हैं, उनका क्या आपका वो है? नहीं, डायमंड पहचानने का तो साइंटिफिक डायमंड की बात नहीं कर रहे हैं, जो आप डायमंड अच्छा बात, बहुत अच्छा किया, तो वही मेरा सब्जेक्ट का है। बट डायमंड का मैं बता दूं, उसका 4C आता है खाली पहचान के लिए। तो उसका कलर, क्लियरिटी, कट एंड कैरेट, कितना वजन का है, उस कितना क्लियर से कौन सा कलर है और उसका कौन सा कट बनाया है। ऐसे हम लोग मानव में क्या करते हैं, जब हम हायर करते हैं किसी को, तो हमारा सबसे पहला हायर में वो पूछते हैं कि हमारा पगार कितना, हम बोलते हैं 0। तो बोलता है हमारा टाइम क्या, हम बोलते हैं 24 घंटा और 365 डेज। तो बोलता है ऐसा कैसा, मैंने बोला देखो हम यहाँ नौकर तो रखते नहीं है। नौकर का मीनिंग क्या होता है, कुछ नहीं करने का, उसको नौकर बोलते हैं। तो मैंने बोला यहाँ तो करने का है। आप यहाँ फैमिली मेंबर होके आते हो, अगर आपको फैमिली मेंबर बनने का है तो आप आओ। जैसे फैमिली, एक बालक आया राजा महाराजा के वहां आया तो ऐसे वो जी लेते हैं, झोपड़पट्टी में आए तो ऐसे वो एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे बालक जहां होते हैं वहां एडजस्ट हो जाते हैं। बालक को अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी के मैं कहाँ जन्म लूं, मगर आपको अपॉर्चुनिटी है कि एक कंपनी में जन्म लेना है कि नहीं। अगर कंपनी में आया, हमारे 44 साल के पगार का पी बोलने का हमारी कंपनी में मना है। हम बोलते हैं कि कोई हमको पगार की अगर बात करे तो हमको लात मारे, इतना इंसल्ट लगता है। तो आप कभी भी पगार के बारे में सोचने का नहीं, बात कहने का नहीं, कुछ करने का नहीं। आपको ऐसा लगे कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा एक कंपनी है, मेरे को यहाँ काम करने का है, तब करने का। हमको ऐसा लगे कि पूरा वर्ल्ड में, विश्व में अच्छा ही अच्छा ये आदमी है, तब तक हम आपको रखेंगे। और ये अब जब भी आपको हमने आज ट्रेनिंग दिया, क्योंकि हम डायमंड का एक आदमी खड़ा करने का हमारे को मिनिमम 10 लाख का नुकसान कंपनी को जाता है, मगर वो हम दिख के नहीं जाता है। मगर अगर कारीगर ने काम किया तो जो उसकी क्वालिटी आएगी, इसमें जब नया काम करता है क्वालिटी डाउन होगी, तो जो कंपनी को नुकसान जाता है 3-4 साल लगते हैं। ऐसे तो 1 महीने में तैयार होता है, मगर जैसा आदमी बनाने में 4-5 साल भी लग जाता है। तो 8-10 लाख का नुकसान कंपनी को होता है। मगर कभी भी हमने किसी को भी एक भी बार रोका नहीं। वो अगर 1 साल के बाद ऐसे बोले मैं जाओ, ओके, ऑल द बेस्ट, हैव यू गुड लक। अने कभी भी कोई काम है जिंदगी भर में तो ये तेरा घर है बोलने का। अगर 5 साल के बाद चले जाए तो बहुत अच्छा, यू कैन गो। तो उसके हिसाब से फायदा क्या हुआ, हमारा कभी मगज बिगड़ा नहीं, कंपनी को कोई प्रॉब्लम आया नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं, और सामने वाले को भी कोई बंधन नहीं है। तो अगर उनको हम बोलते हैं, तेरे को लगे कि मेरा ये लोग समझते नहीं, मेरी लायकात लाख रुपीज की है और मेरे को 50 देते हैं, अरे भाई आप चले जाओ ना, लाख क्या, हम तो आपको ऐसे आशीर्वाद देते 5 लाख कमाने लगो। मगर ये अपना जो रूल्स है, ये जो सिस्टम है, इसमें आपका जो 50,000 बैठते, मगर ये कैसे चलते हैं देखो। वो बावजूद भी हमारे वेटिंग लिस्ट में मोर देन 800 पीपल। वाई? तो इसलिए कि सबको मालूम है कि हमारा सिद्धांत है कि हमको बांटने का है। तो हम कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि हमको कमाने का है, वो आम आदमी से कमाने का नहीं, उसको बांटने का है। हमारे को कमाने का है परचेस में, हमारे को कमाने का है सेल्स में, सबसे ज्यादा हमारे को कमाने का है हम क्या कर सकते मैन्युफैक्चरिंग में, उसको प्राइस, कीमत कैसे, वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, एक ही हमारा ध्यान केंद्रित है। इसलिए ये फैमिली बोल के ऐसे खाली बोली में नहीं चलता है। मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा दूं जो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। 2008 में वर्ल्ड रिसेशन आया तो डायमंड में भी आया, और डायमंड में सारा वर्ल्ड में 2-5 कंपनियां ऐसी थी कि जिसने एक भी वर्कर को के आदमी को छूटा नहीं किया। इसमें एक हमारी कंपनी थी। तो देखो हमारी 5 तक 6 मोर देन 5,500 जैसा आदमी था। तो पहले दिन तो जब हमारा पार्टनर सब है, भांजा और भतीजा है, फैमिली कंपनी है।
तो वो सब लोग बोलने लगे कि ये सबको अभी निकाल दे, नहीं तो कंपनी टिकेगी नहीं, अपनी मूड़ी तो जीरो हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ये सब क्योंकि 100 का 50 हो गया था, 100 का 60 हो गया था भाई सब। तो स्टॉक में जितना भी है तो ककड़बुझ पूरा हो गया था। मैंने बहुत सोचा, उनको समझाया, अभी 2 महीनों तो ठहरो, अभी तो वेकेशन दिवाली का चल रहा है, देखते हैं। ऐसे ऐसे करके 2 महीने में ऐसा मानस बनाया। मेरा भांजा और भतीजा सब बोलने लगा कि हम सब फैमिली मेंबर है और अगर ये कंपनी में से निकलेंगे तो हम सब साथ में निकलेंगे। अब पिता इधर रह जाए, बड़ा भाई इधर रह जाए, छोटा भाई निकल जाए और भतीजा निकल जाए, ऐसे नहीं, पूरा 5500 आदमी जब भी कंपनी खत्म हो जाएगी तो हम सब एक साथ में निकल जाएंगे। मगर जब तक कंपनी है तब तक हम सुख दुख साथ में रहेंगे। देखो वो टाइम पर मोर देन 2000 लेटर आया है। आप एक लेटर पढ़ो ना तो ऐसे उनको जीवन सार्थकता बोलते हैं कि एक लेटर जो वर्कर ने लिखा है। कोई ने लिखा कि सब लोग बोलते हैं कि गोविंद भगत है सूरत में, मैं तो बोलता हूँ कि ये भगत नहीं, ये गोविंद भगवान है। तो कोई ने बोला मैं वो भगवान को नहीं देखा मगर ये भगवान को देखा है। तो किसी ने बोला कि मैं पगार नहीं लूंगा till दिवाली, क्योंकि मेरी 5 दिवाली तक रूम चले इतना पैसा है, अगर कंपनी बचेगी तो ही मैं पैसा लूंगा, अगर मैं वो पगार नहीं लूंगा। किसी ने बोला मैं 50% पगार लूंगा। अब सामने से एक एक करके उसने जो लेटर लिखा, एक लेटर पढ़े तो अपने में से एक कमानी चाहिए। देखते हैं कि भाई हमारे पास हो गया $1 बिलियन का बिजनेस हो गया और ऐसा इतना कंपनी में मुड़ी, ये तो बहुत छोटी है वैल्यू, ये कीमत है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो वो लेटर की एक एक वैल्यू है। ये जीवन सार्थक है। मगर कब हुआ? देखो, कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर है। ईश्वर महान है, सब योजना यही बनाते हैं। क्यों कि हम कंपनी शुरू किया डोंगरे जी महाराज के हिसाब से, उनका एक सेंटेंस हमने पालन जो किया, उसका तो बहुत सेंटेंस 10, 15, 20 सेंटेंस हमारा जीवन में है। एक सेंटेंस था कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए मगर पाप करना नहीं चाहिए। तो मैं हमारा डायमंड बिजनेस में पूरा ओपन चैलेंज है कि मैं पैसे के लिए बिजनेस में एक भी बार अगर गलत बोला है तो मैं बिजनेस छोड़ दूं। पूरा मार्केट, ओपन मार्केट, पूरा वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड में। तो क्या है कि सच बोलने से भी पैसा मिलता है, ये मैं सबको साबिती देना चाहता था। तो मैंने मुरारी बापू की रूबरू में भी यही बात की कि बापू मैं बड़ापन करने के लिए नहीं, मैंने ये युवान को, युवा धन को मैं मैसेज दिलाना चाहता हूँ कि जो सोच रहे हैं कि झूठ बोलने के अलावा पैसा मिल ही नहीं सकता, ये गलत ढंग निकाल दो। ये सब आपको दिखते हैं, कभी गलत नहीं बोला, खोटा कोई काम नहीं किया, झूठ नहीं किया, फिर भी ये सब कुछ है। तो उनके हिसाब से भगवान क्या योजना करते हैं कि 2008 में हमने सबको रख दिया। हमारे को नुकसान घाटा तो तब मोर देन 100 करोड़ ऑफ नुकसान था खाली गुड्स में, 100 करोड़ का। और फिर 5-10 करोड़ ये वर्कर को जब रख लिया, काम तो था नहीं, क्योंकि एक हीरा बनावे 100 का बनावे तो 70 आवे तो 30% नुकसान जाए, तो उसको ऐसे ही पगार दिया, मैंने आधा दिया 75 पर, जिसको जिसका जरूरत इतना दिया, 4 महीना निकाल दिया। भगवान ने क्या योजना की, अप्रैल 2009 में पूरा रॉ मटेरियल 50 पैसे में मिलने लगा और फिनिश गुड 70 to 75 पैसे में बिकने लगा। तो 50 का 75 तो 100 का 150 हो गया, 100 का 150 हो गया। देखो 4 महीने तक हमको 100 का 150 भगवान ने दिया। दूसरी 5 कोई जी का प्रोडक्शन था नहीं था, सबने निकाल दिया था, तो सबको चांस नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर रखा था, क्योंकि हमने हमारा भतीजा और भांजा को यही समझाया था, जब समझाया तब कि देखो हमने ये 40 साल से जो बिल्डिंग खड़ा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप देखते हैं कि हमारी 5 भाई ये बुक्स पर 500 करोड़ हो गया तो हमारे पास 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, ये गलत मानो। ये अपनी 5 जो मूडी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो चला जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो तो कभी भी। यू देखो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं टूटना चाहिए।
फिर मैं समझाया था कि रिलायंस और टाटा 10,000 करोड़ लेके आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, तो उनको खड़ा रखो। एक पॉइंट पर सबको मैंने पार्टनर को मनाया था और मान गए थे। बाद में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से 2008 में हमारी कंपनी टॉप 20 में थी, टॉप 10 में नहीं थी। आज टॉप 3 में हो गई। कैसे हो गई? 2008, डिपेंड ऑफ द 2008 तो हमने रखा, पैसा बढ़ गया सडनली। अरे ऑनलाइन हमारा बिजनेस 2008 में 3% था, 2009 अप्रैल में 40%, जहां हम 5 साल से नहीं पहुंच सकते थे ना 5 महीने में पहुंच गए। कैसे? तो हमारा प्रोडक्शन शुरू था, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था और ऑनलाइन 5-6 कंपनी पूरा इंडिया में थी, तो किसी के पास प्रोडक्ट था नहीं, हमारे पास था। तो सब वो ऑनलाइन क्या बोलते हैं उसको, वेब में, तो उनके वेब में निकल, क्योंकि नया माल उनके पास आता नहीं था, हमारे वेब में नया माल आता है, तो सब हमारे वेब में आ गए। तो 40% सेल ये कौन करता है? एक कोई कुदरत जो अदृश्य शक्ति है, जो मैं मानता हूँ, उनकी सब ये योजना रहती है। सर, अपनी सफलता में कितना प्रतिशत श्रेय किस्मत को देते हैं और कितना हार्ड वर्क? बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हार्ड वर्क एंड लक, प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ दोनों अलग है ही नहीं। पहले तो बात मेरी समझ में, डोंगरे जी महाराज ऐसे समझाते थे कि संसार रूपी रथ में जो आपका जीवन में 2 व्हील है, एक है पुरुषार्थ का, एक है प्रारब्ध का। अगर आपने पुरुषार्थ बहुत किया मगर आपका प्रारब्ध में नहीं है, तो आपका रथ वहां ही वहां घूमेगा, क्योंकि एक व्हील नहीं चल रहा है, एक ही व्हील चल रहा है। अगर आपका प्रारब्ध में है, आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका वहां ही वहां रथ रहेगा। मगर दोनों व्हील अगर चला तो आप आगे निकल पाएंगे। तो दोनों का 50-50% दे दिया डोंगरे जी महाराज के हिसाब से। अभी मेरा बात कि पुरुषार्थ क्या होता है, लक क्या होता है, ये तो आप पुरुषार्थ का फल माने प्रारब्ध। अपने आज बोला ये तो प्रारब्ध हो गया, कि अच्छा बोला तो अच्छा प्रारब्ध हो गया, बुरा बोला तो बुरा हो गया। हम चलते हैं तो अभी आप सब मिले हम लोग, तो हमारा प्रारब्ध बन गया, क्योंकि आपने भी यहाँ चल के आया, 1-1.5 घंटा बैठा, मैं भी बोला, तो ये ये प्रारब्ध हो गया, तो उनका फल मिलने वाला है। तो प्रारब्ध पुरुषार्थ से ही होते हैं, तो दोनों अलग है ही नहीं। सेटिस्फैक्शन यस सर। सर, आपने सभी अपने सारे अपने सक्सेस के बारे में बताया कि आपके इसमें करियर में क्या कोई फेलियर ऐसा कुछ हुआ कि जिससे आपने कुछ सीखा, कोई फेलियर? ऐसे तो जीवन में मेरे ख्याल से सबको एवरी क्षण सीखने मिलता है। और मैंने बोला ऐसा प्रॉब्लम जो हम समझे तो एवरी क्षण प्रॉब्लम आता है, अगर सेटिस्फेक्शन समझे तो एवरी क्षण सेटिस्फेक्शन आता है। मित्रों, पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में नेचुरली कुदरत जो सुख दुख देते हैं हमको, जो दुख देते खाली 10% देते हैं। क्योंकि मैं एक प्राणनाथ हॉस्पिटल का 4 साल मैंने उसका मैनेजमेंट किया, तो मैं इस सब पेशेंट को मिलने को जाता था। देखो, इसमें से 60-70% पेशेंट नेचुरली बीमार होके नहीं आए हैं, कोई धूम होके आए हैं, कोई ने गिर गया, कोई ने मार झगड़ा किया, फाइटिंग किया, कोई ने ऐसा किया तैसा किया। तो ये भगवान की कृपा बरस रही है, पार नहीं है। भगवान गुजराती में कहेवाय છે ભગવાનની કૃપાનો પાર નથી અને જીવની અવળાઈનો પાર નથી। तो भगवान की कृपा अपने ऊपर बरस ही बरस रही, सबके ऊपर। तो नेचर, आप कोई भी भगवान मीन्स नेचर, तो नेचर की जो कृपा तो बरस ही रही है। मगर ये जीव जो अपने है, अपना जो मन है और अपना जो ईगो है, उसकी इतनी अवलाई है, वो आनंद को नजदीक आने ही नहीं देते, वो रुक की देते हैं। तो अपने बहुत सोचे अपना जीवन में भी, तो अपने को देखना मिलेगा कि हम जो सुख दुख भोगते हैं वो अपना स्वभाव से भोगते, स्वभाव से ही ये बनेगा। आपका क्या प्रश्न था? कोई हर्ट हुआ कि नहीं? तो हर्ट होता रहता, मगर क्या मैं समझाऊं जीवन में क्या है। तो अगर
पॉजिटिव थिंक है, एकदम पॉजिटिव थिंक है, टोटली पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। मैंने मोरारी बापू को बोला कि मोरारी बापू आप जब जाहिर प्रवचन में 30 साल पहले सूरत में आए तभी बोले थे कि आप लोग को कोई कितना भी माने मगर 3 लोग आपको नहीं मानेंगे। कौन? पाडोशी मीन्स नेबर, और पितराई मीन्स कजिन ब्रदर, एंड पत्नी मिसिस, ये 3 आपको नहीं मानेंगे। कुछ भी, कोई कुछ भी करो आप, ऐसा मोरारी बापू ने बोला। मैंने बोला बापू आप तो गलत बोलते नहीं, मगर भगवान की कृपा मेरी ऊपर बरस रही, आप देखो तीनों मेरे को मानते हैं। ये भगवान की कृपा है, इतना पॉजिटिव थिंक है, पॉजिटिव थिंक। आपको मैं पॉजिटिव थिंक के लिए एक खाली सेंटेंस दे दूं, अगर आपका जीवन में ये 4 शब्द आ जाए तो आपके पास दुख आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। चालशे, भावशे, गमशे અને ફાવશે, ये जीवन में बिजनेस में नहीं चलता। चालशे तो चलेगा, चलेगा। भावशे એનું હિન્દી શું થાય? अच्छा लगेगा, ભાવવાનું अच्छा ન હોય, हाँ पसंद, भोजन पसंद भी आवे उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल। हमारे जो बोलते हैं भावशे, तो उसका हिंदी क्या होता है? स्पेशल, मनपसंद। तो ये भोजन में भी पसंद की कुछ भी बना, और चाल से, भाव से, गम से, कैसा भी कपड़ा मिला, कैसा भी ड्रेस है, चलेगा बस, बहुत गम से, बहुत अच्छा बात, जैसा भी जीवन मिला बहुत अच्छा। अब भाई मारुति में जाना पड़ा, कार में बहुत अच्छा, और भाई स्कूटर में जाने पड़ा बहुत अच्छा, और छेले फाव से, कुछ भी हो तो फाव से, भाई टेबल अच्छा हो, नीचे बैठने खाना है, टेबल पर बैठने, किधर भी जाने का, एसी है नहीं है, अच्छा बस फाव से, चाल से, भाव से, गम से ने फाव से। अगर अपना जीवन में 4 सेंटेंस आ जाए तो दुख हमारे पास आ नहीं सकता। ये डोंगरीज महाराज के हिसाब से और भगवान की कृपा से मेरा जीवन में ये 4 वस्तु है। मैं ज्यादा बोल लूं मगर माफ करने का, आप मानो कि हमारा मैरिज हुआ उसको 43 इयर्स हो गया, अभी हमारे पति पत्नी को झगड़ा नहीं हुआ। तो पॉजिटिव थिंक है, स्वीकार है। तो ये स्वभाव का बल है, ये मेरी कोई बड़ापन नहीं है, ये स्वभाव का बल है। तो और ये जान के भी आपको आनंद होगा कि मेरी वाइफ अनपढ़ है, और ये आनंद इसलिए होगा कि सीबीआई का डायरेक्टर मेरा सन का मैरिज में आए थे, तो वो बोलता था, मैंने चाची का उसको पहचान करवाया कि मेरा वाइफ है और बहुत अच्छी है, मगर वो अनपढ़ है फिर भी बहुत अच्छा काम करती है। वो 3 दिन के बाद गया तो उसने एक सेंटेंस मेरे को दे के गया कि जब आप में आया तब आपने पहचान करवाया था कि मेरा वाइफ अनपढ़ है, मगर आज मैं 3 दिन उनका काम देख के जाता हूँ कि उसने फैमिली को साथ में कैसे रखे और फैमिली का बिहेवियर साथ में, फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर, उसमें उसने PhD किया है। मैं उनको डॉक्टर बोलता हूँ। अश्विनी कुमार जी सीबीआई ना डायरेक्टर बोल के गए। तो ये बात है कि भगवान की दया से उनको भी इतना है। देखो पहला मैंने बंगला बनाया 82 में, तो वो आर्किटेक्ट बोला कि भाभी से मेरे मीटिंग करवाओ, उसको क्या चाहिए? मैंने बोल तो 6 थाली चाहिए, 12 बाटकी चाहिए, 1 तावड़ी, 1 कोलोटी, 1 हेल चाहिए, दूसरा उसको कुछ जरूरत नहीं है, अपने पहला बनाओ, सीखने का है कैसे रहने का। तो फिर बंगला बन गया। मैं बाद में कंप्लेन करूं कि तेरे को कुछ आता नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। 2 साल में 3 ट्रिप फॉरेन का लगा दिया, हांगकांग से अमेरिका तक, उसको सब कुछ दुनिया बता दिया। उनको मालूम हो गया कैसे जीने का, हम कौन है, कैसे जीने का है। तो कच करने की जरूरत रही। आपने ट्रेनिंग पूरा दिया उनको। भगवद गीता से क्या क्या प्रिंसिपल्स आपने आपके बिजनेस में यूज किया और कितना सक्सेस से मिला? जो भगवद गीता है ना, ये मैनेजमेंट का जो महान गुरु बोलते हैं वो भगवद गीता। भगवद गीता में ऐसा कोई जीवन का क्वेश्चन नहीं है कि उनके अंदर नहीं आवे। अगर आपका जीवन का आप 1 महीने तक, 2 महीने तक, 1 साल तक सब क्वेश्चन खड़ा करो कि भाई मेरा जीवन में इतना क्वेश्चन है,
और ये क्वेश्चन करके आप एक बार पूरा गीता पढ़ लो, आपका टोटल आंसर अंदर से आ जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को योगानुयोग, देखो कोई पूर्व जन्म को मानता है नहीं मानता है, पूरा बहुत कंफ्यूजन है, और कोई नहीं मानता है उसको भी नमस्कार, मानता है उसको भी नमस्कार। मगर मैं मानता हूँ, तो मैं मानता हूँ पढ़ के नहीं मानता हूँ, मैं मेरा जीवन से मानता हूँ कि मेरा हाथ में 10 साल की उम्र में गांव में 700 मानो का, जब भी मैंने तीसरी चौथी में पढ़ रहा था, मेरा हाथ में गीता जी आया, क्योंकि स्वामीनारायण का छोटा मंदिर गांव में, वहां स्वामीनारायण का साधु साल में एक बार आवे, वो गीता जी लेके आए। मैं मंदिर में शाम को जब तक मंदिर दर्शन नहीं करे तब तक माता खाने नहीं देती, ऐसा हमारा रिवाज था। तो मैं वो गीता मेरे हाथ में आई, और गीता आके मेरे को जो हृदय में और पुलकित हुआ, और जब मैं जब बोलता है कि जैसे समाधि अवस्था हुआ, ये तो मैं बोल नहीं सकता। जैसे डोंगरेज महाराज बोलता कि राम कैसा, तो भाई राम कैसा, तो राम जैसा, उनको तो किसका दे, क्योंकि वो तो राम जैसा राम। ऐसे मैं कैसे बताऊं कि कैसे मेरा मानस में हुआ, मगर ये मेरे को जो वो पुलकितता आई, और मैं जो तभी जो समाधि अवस्था आई, तो गांव में कोई गुरु नहीं था, किसी ने गीता दी नहीं थी, उसको गीता बोलते कोई ने बोला नहीं था। तो ये कैसे मेरे को लगा, और ये मेरे दिमाग से इतना अच्छा लगा, तो मैं गीता पढ़ने लगा। हर दिन एक गुजराती में एक श्लोक पक्का करने लगा, 3 अध्याय पक्का हो गया। फिर वो स्वामी जी आए, तो स्वामी जी ने मैंने पूछा कि गीता तो मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा है कि आत्ताईयों ने मारवा में पाप नहीं, तो आत्ताईयों मारने में पाप नहीं लगता है, तो आत्ताई क्या होता है? स्वामी जी ने बराबर समझाया कि जो भग शब्द का मीनिंग होता है 6 गुणों से युक्त, એટલે हम लोग उसको भगवान बोलते हैं। जे 6 गुणों से युक्त है उसको भगवान बोलते हैं, 6 अवगुण से युक्त है उसको आत्ताई बोलते हैं। बराबर समझाया। फिर बोला कि अपने स्वामीनारायण का सत्संगी है, तो पहला शिक्षा पत्री का पक्का करो, बाद में गीता जी करो। मैं गीता जी छोड़ दिया और शिक्षा पत्री शुरू किया। आपको जान के नवाई लगेगी, मेरे को भी अभी भी है, 212 श्लोक है शिक्षा पत्री का। आज तक में एक भी श्लोक पक्का नहीं हुआ है। मैंने बहुत किया, और गीता जी का, फिर गीता जी को पकड़ के मैं जब सूरत आया तब आधा गीता तो पक्की हो गई थी। 16 साल की उम्र में पूरा 700 गुजराती में श्लोक मेरे को पक्का हो गया था। तो कोई गुरुजी नहीं मिला, किसी ने किया नहीं, आप कैसे हो? तो ये मैं समझता हूँ, मानता हूँ कि कोई पूर्व जन्म है। मैं मेरा हिसाब से मानता हूँ कि ये जो बोलते हैं योग भ्रष्ट पुरुष, गीता में आते हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष सूची अथवा श्रीमान कुल में जन्म लेता है, अगर कोई श्रीमान योगियों के ग्रह में जन्म लेते हैं, ऐसे लिखा है इसमें। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई मैं खुद पूर्व जन्म को भी मानता हूँ और गीता जी को भी मानता हूँ। और आप, मेरे को ये भी मालूम है कि इसमें ऑडियंस में से 5% भी पूर्व जन्म को नहीं मानते, मगर नहीं मानते वो लोग गलत नहीं है, वो पसंद अपनी अपनी चाल अपना। सर आपने कभी गलती से भी कोई गलती हुई है, आपसे ये गलत काम हुआ है, और नहीं तो आपके साथ कोई गलत करता है तो आप क्या करते हैं? नहीं सर, गलती भगवान ही नहीं करते, भगवान के अलावा कोई भी जीव गलती करता है। मैं भी दिन में कोई ऐसा दिन ही नहीं गया कि जो मैंने गलती नहीं किया होगा, जाने और अनजान में। मगर गलती अपना अटेंशन नहीं होना चाहिए, एक ही बात है। बाकी तो गलती तो होती रहती है, मगर गलती में से सीखने का है कि वो बार बार नहीं हो जाए। एक बार हो गई तो दूसरी बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो गलती तो होती रहती है। दूसरा, सामने वाला गलती करे, ये फिर आया पॉजिटिव थिंग। कोई भी ने बोल दिया मेरे सामने कुछ भी अव्यवस्थित, तो मैंने उसके ऊपर दाज नहीं, उसके ऊपर क्रोध नहीं आता है, द्वेष नहीं होता है, मेरे को दया आता है कि भगवान ने बेचारे को कैसा स्वभाव दिया। मैंने तो उनके साथ 1 घंटा काम करने का है कि 1 दिन करने का है, मगर उसकी पत्नी को क्या होता होगा, उनका पिता को क्या होता होगा। और ये भी बेचारा, ये भी अच्छा है आदमी, मगर भगवान ने उसका ऐसा ही वो सेल आधा टेढ़ा रख दिया, तो उसका थिंक ऐसा हो गया। तो मैं उनकी दया आती है। तो मेरे को बहुत जान के आपको आनंद होगा कि मैं आपको भी वो सिखाऊंगा, दूंगा। मैंने जो मिला है क्रोध, तो मेरे को क्रोध नहीं आता है। तो क्रोध नहीं आता है, इसलिए जीवन बहुत भरपूर जाता है। क्यों? गीता में भगवान ने बताया है, काम
क्रोध एंड लोभ, ये तीन आत्मा की दुर्गति करवा वाला नरक का द्वार है करने का। क्यों? अगर नरक में जाने का है तो 3 दरवाजा, अपने यहाँ है ना 3 दरवाजा, तो नरक में जाने के लिए 3 दरवाजा, काम, क्रोध एंड लोभ, ये सब गीता में बोला है। आप माने नहीं माने आपकी इच्छा की बात। तो उसमें मुरारी बापू बहुत अच्छा बोलते हैं, और डोंगरे जी महाराज ने भी बहुत अच्छा विवेचन किया है। मुरारी बापू क्या बोलता है कि उसके बचने के लिए, हम कोई भगवान नहीं है कि तीनों से बच जाएंगे, बचने की जरूरत नहीं है, उसको विवेक से उसका यूज करो। मगर जो कामी आदमी, उसका तीनों का काल समझो, काल का क्या इंग्लिश में होता है? टाइम, वे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये आप टेंथ, ये इतना गड़बड़ होगा। तो ये जो है तो 3 समझो। तो वो बोलता है कि भाई आप हम मानते हैं, हम समझते हैं, सब लोग का यहाँ तो सब समझते हैं, मगर फिर भी लोभ का काल क्या है? तो वो उसका फ्यूचर है। लोभ हमेशा फ्यूचर के लिए होते हैं, लोभ कभी प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए लोभ होते ही नहीं है। और काम हमेशा प्रेजेंट में ही होते हैं, वो भूतकाल में भी नहीं होते हैं, भविष्य में भी नहीं होते, फ्यूचर में भी नहीं होते, वो प्रेजेंट में होते हैं। और क्रोध जो होता है वो खाली पास्ट के लिए होता है। क्रोध कभी कल ये बात होने वाला, इसके लिए क्रोध नहीं होगा। क्रोध जो बात बन गई, जो पास्ट हो गया, उनके लिए ही क्रोध होता है। कभी भी एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने लात मारा, किसी ने कुछ किया, तो पास्ट के लिए ही क्रोध होते हैं। और हम कितना गलत है, क्योंकि पास्ट अगर भगवान खुद आ जाए तो बदल नहीं सकता है। जो तो बदल ही नहीं सकता, उनके लिए हम क्रोध करते हैं। तो क्रोध इतना ही खाली समझने का है, जब भी अपना क्रोध का आवेश और आवेग आवे तो इतना ही समझने का कि ये बदलेगा, जो हो गया नहीं बदलेगा, तो फिर मैं क्या क्रोध करूं? अभी नेक्स्ट टाइम नहीं होवे ये भूल, उनके लिए मैं क्या करूं? ये फ्यूचर बनाने का। क्योंकि हमारे तो वहां डायमंड में बहुत है, अगर एक डायमंड टूट गया, वर्कर बना रहे हैं, टूट गया, तो वो 1 लाख का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। और हमारे वहाँ 14 करोड़ तक का डायमंड बना है मैक्सिमम, एक डायमंड 14 करोड़ का, तो करोड़ों की भी हो सकता है। तो ये डायमंड अगर जो एक बन सकता है और टूट जाए तो कितना क्रोध आवे भाई? तो हम क्रोध नहीं करते। हमने सबको समझाया है कि अपना जो वर्कर है, जो रत्न कलाकार है, उसके अपने ऊपर दाज है नहीं है, तो वो क्यों तोड़ डालेंगे भाई? तो उसको भी एक आदमी है, तो गलत नहीं हुए, उसके लिए क्या करना है? उसको वातावरण दो, एयर कंडीशन उनको दो, उनका मगज फ्रेश रहे, उनको चाय जितनी चाहे इतनी दो। आपको ये भी जान के आनंद होगा, हमारे 5000 से ज्यादा फैमिली मेंबर है जो फैक्ट्री SRK का 5000 निर्व्यसनी है। हमारे वहाँ कंपनी में है कि अगर व्यसन छोड़ो, अगर कंपनी छोड़ो, लास्ट 5 ईयर से हमारा सेंटेंस है। तो व्यसन में आप दारू मानेंगे, दारू तो हमारे वहाँ है ही नहीं पहले से, जन्म से कभी भी, तो दारू की बातें नहीं है। वह गुटखा, तम्बाकू, सिगार कुछ भी नहीं, और व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो, ये हमारा सेंटेंस है। क्यों कि हमारा ये रातों रात नहीं बन गया, 40 साल से ये जर्नी आ रही है। सबको समझाते हैं कि कैसे कैंसर होते हैं, कैसे मर जाते हैं। हमको जीने का अपने लिए नहीं, हम मर गया फिर तो कुछ है ही नहीं, हम जीने का है तो अपना कुटुंब के लिए जीने का है। ऐसा सब समझाते थोड़ा थोड़ा करके ये करो ते करो, एक करके उसको आम जैसे बोले मानव बनाया। हम लोग कंपनी में मानस रखते हैं, कभी भी नौकर नहीं रखते, तो मानव रखते। मानव तो हमारे पास मानव है, तो मानव कभी भी गलत काम करते नहीं है, मानव कभी दुख देते नहीं है, इसलिए कंपनी में सुख है। आपने 150 देश देखे हैं, और आपके हिसाब से हमारा देश का और अभिवृद्धि करने के लिए क्या आपको दिमाग में क्या निकलता है? देखो, मैंने सब देश देखा है, इसमें प्रॉब्लमिक प्रोग्रेस की बात आई। आपको जान के आनंद भी होगा, दुख भी होगा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है
ये बहुत अच्छा है। इंडिया में प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ हमारा जो जनरली IQ परसेंटेज में देखे यंगस्टर में तो बहुत ज़्यादा है। IQ, बुद्धिमत्ता, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी सब कुछ अपने पास आगे है। और यूरोप अमेरिका में जहाँ प्रॉब्लम है ही नहीं जन्म से जनरेशन, तो उनके पास अभी IQ बहुत डाउन हो गए हैं। तो उनका अपने इंसल्ट करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, ये दुख की बाबत है। मगर पीपल पान खरंता हंसती कुपड़िया अमवीती तमवीत से धीरी बापुड़िया, तो ये यहाँ भी आएगा। अगर कंफर्ट जोन में चले गए अपना बाल को तो ये यहाँ भी आएगा। ये वहाँ कंफर्ट जोन है। बापा कोई दिकरे को बोल नहीं सकता, कोई पुलिस नहीं बोल सकती, गवर्नमेंट नहीं बोल सकती, और वो अगर वो काम करे तो $1000 मिलते हैं, नहीं काम करे तो 1100 मिलते हैं। भाई क्यों काम करे? कंफर्ट जोन, सब कंफर्ट जोन में चले, बुद्धि का काम ही नहीं। तो हमारी बुद्धि कैसे बढ़े? एक्सरसाइज है। हम चले पहले दिन 1 किलोमीटर, 2, 5, 10 किलोमीटर एवरी डे वी कैन रन। मगर अगर एक्सरसाइज है तो पहले दिन 10 किलोमीटर चले तो बीमार हो जावे। ऐसे बुद्धि का भी है। अगर प्रॉब्लम उसको विचार करते 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 निकालो तो ही बुद्धि बढ़ेगा, नहीं तो बुद्धि कैसे बढ़ेगी? तो यहाँ बुद्धि धन हमारे पास बहुत है और ज्यादा बहुत है, मगर वो कैसे चले जनरेशन टू जनरेशन, यही अपने। आपके पार्टनर्स अभी आपने शुरू किया SR के 3 लोग और आपके भाई साथ में, ये हम 3 पार्टनर जो 3 था वो हमने बहुत, ये भी बहुत स्टोरी बहुत महत्व की है। आपने पूछा, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू। हम 3 पार्टनर थे। मेरा नाम गोविंद, भगवान भाई एंड वीरजी भाई, तीनों साथ में काम करते थे। तीनों ने लगाया। फिर 83 में हमारा जो पार्टनर वीरजी भाई था उनको कैंसर हुआ और ख्याल आने के बाद अगस्त में ख्याल आया, नवंबर 30 तारीख को वो दुनिया छोड़ के चले गए। तभी उनका बड़ा लड़का 12 साल का था और छोटा 8 साल का था। तो उनके बाद 83 में वो एक्सपायर होने के बाद हमने 95 तक कंपनी शुरू रखा और उनका जो शेयर 33% था वो भी शुरू रखा। और उनका बड़ा लड़का 24 साल का हुआ, छोटा 20 साल का हुआ, तभी उनको उन कंपनी का शेयर उनको दिया। उनको जाने के बाद 12 साल हमने उनको साथ में रखा। और 95 में हम लोग तीनों सेपरेट हुए, क्योंकि बाद में 22 न्यू जनरेशन इज कमिंग फॉर 3 फैमिली, दैट वाइज वी सेपरेट। मगर आज भी साथ में है हम लोग कि भाई आज रॉ मटेरियल खरीदना है, बात करने का है, बैलेंस शीट देखने का है, ऐसे सब साथ में है। मगर अलग हुए उसको भी 18 साल हो गया, 95 में हम अलग हुए। ये बांटने से बढ़ता है, बांटना सीखो। और आपके लिए अभी बहुत महत्व की मेरा अभियान चल रहा है, ये मैं बात बताऊं कि आप कहाँ बांटेंगे। तो देखो, घर से शुरुआत करने का। सबसे पहले हमारे नजदीक जो लोग हैं, हमारा ड्राइवर है, हमारा घर नौकर है, हमारा पियून है, कोई भी है, हमारा वॉचमैन है, पहले उनको बांटो। तो बांटो क्या करो, तो मेरी प्रार्थना है कि आप पगार बहुत ज्यादा देते होंगे। अगर ड्राइवर का पगार 30,000 से कम है तो आज 30,000 तक बढ़ा दो। सबको डबल तो करने का है, मगर डबल कर 30,000 के ऊपर जाए तो नहीं, बढ़ाए तो चलेगा। ड्राइवर का पगार, क्योंकि हम ड्राइवर के साथ अपना फैमिली का पूरा उनको जिम्मेदारी देते हैं, हमारा जीवन समर्पित करते हैं। और इसमें हम थोड़ा इतना मन दिल बड़ा नहीं रखते हैं। और दूसरी बात है घर नौकर की। सब लोग बोलते हैं घर नौकर का क्या यार, उनको 5,000 बहुत हो गया, ऐसे सोचते हैं, 10,000 बहुत हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे जो घर नौकर है उसका आता है अभी घर में पहले उसका 17,000 पगार पहला नंबर का है। और सबसे जो नया रखते हैं 10,000 के कम से कोई रखते ही नहीं है। तो बांटने की शुरुआत घर से करो पहले। अगर बांटा, मगर एक सबसे बड़ी बात सतयुग की मैं बोलूँ आपको, तो मेरा सतयुग कैसे चल रहा है। मैं बंगले रहने को गया 86 में, आज उनको 27 साल हो गया। बंगला में मैंने लॉक नहीं लगाया। पूरा बंगला में 3 दरवाजा बंगले में जाने के लिए है। 5 बेडरूम है, एक बेडरूम को आज तक नहीं लगाया लॉक। और अंदर कबाट है, कबाट में लॉक नहीं लगाया। 27 साल से मेरा घर खुला है
और 27 साल में एक भी चीज घर में से नहीं गई है। क्यों? कि ये बांटने से आदमी ऐसा मिलता है जो हमारा ख्याल रखते हैं। तो हम लग्न है, फलाना है, तो हम क्या करते हैं, तो गाड़ी में जाते हैं, तो गाड़ी में उनको देके जाते हैं, घर में जाके देते हैं। और आपको नवाई होगा कि हम पूरा फैमिली हम चले गए थे लास्ट समर में 2.5 महीना यूरोप में। तो हम पूरा घर, वो 7 नौकर सब मिलके है, तो 7 को घर के छोड़ के 2.5 महीना घर खुला। तो एक भी चीज, वो हमें कोई नहीं था 2.5 महीना, फिर भी ऐसे ही रहते हैं। तो ये जो बात है, तो अच्छा हम अच्छा कर भला तो हो भला, ये जो सेंटेंस है ये हमारा जीवन में लागू हुआ नहीं, उसका परिणाम मिल गया है। मैंने आपको જે સમયને ન ઓળખી શકે એ ભગવાનને ઓળખી શકે नहीं। એટલે समय बहुत महत्व की बात है। समय को देखने रहे मतलब मजा बहुत आया, क्योंकि इतना अच्छा है, तो कैसे बात बताऊं। मेरा अभी तो जो बोलते हैं ना कि दुकान खाली, मेरा खाली 10% हुआ है, 90% तो अभी रह गया है। मगर भगवान की इच्छा, कभी भगवान ये भी योजना बनाएंगे तो हम लोग मिलेंगे। अगर हमारा जाहिर में आमंत्रण है, आप लोग कोई भी सूरत हमारे वहाँ आ सकते हैं। और जब भी मैं सूरत, ऐसे तो अभी 70% सूरत में रहता हूँ, तो आप आएंगे, उसका फ़ोन नंबर ये सब देंगे। हमारी जो स्टोरी है, जो पूरी हमारा जो सन को, सब यंगस्टर को कैसे उसको तैयार किया, उसका थोड़ी स्टोरी वो भी है। तो ये सब ऑनलाइन है, वो किधर है वो लोग को मालूम, मेरे को मालूम नहीं, आप पूछ लेंगे, कुछ ऐसा जाने मिला है तो। और आप सूरत आएंगे, वेलकम, आपको सबको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। देखो, आज मेरा जो 65वां साल चल रहा है, तो ये एक सिद्धि होती है, भगवान एक योजना बनाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि एकदम अभण आदमी, जो बोलते हैं अनपढ़ आदमी, IIM में आवे और उसका रिस्पेक्ट हुए, तो ये जो इसने दिया है चांस, उनको मैं खूब आभार मानता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको भी ऐसे, सबको जिसने भी उसमें पार्ट साहिब के साथ रहकर मेरे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा जिंदगी का सबसे, मेरे को भगवान की दया से बहुत अवार्ड मिले हुए हैं, अवार्ड मिलते रहते हैं। वो तो यहाँ रह गए, हमारे साथ तो आने वाला नहीं है, मगर आएगा क्या कि जो अच्छा काम किया है, अच्छा सुना है, अच्छा सोचा, फीलिंग हुआ है। तो आप यहाँ IIM में जो आ जाए, मेरा जिंदगी का सबसे बड़े से बड़ा अवार्ड है और सबसे बड़ा मेरा। धन्यवाद। हम सभी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। हमें नमस्कार से शुरू करना चाहिए था, पर आपसे बात करने के बाद लगा कि भगवान की योजना थी और हमें आज आपसे इतना कुछ सीखने को मिला। IIM में आके बड़े सब्जेक्ट्स के नाम सुने थे, पर फैमिली बिजनेस, फैमिली और लाइफ, ये जिंदगी को आगे कैसे संभालना है, आज आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।